Good morning, students. Today I am going to discuss simplex method. So it gives the solution of such type of problems. आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमाइजेशन की ही होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय multiplying with -1, and constants must be less than equal to, and all the variables x1, x2 are greater than equal to 0. This is the given problem. We have to find x1 and x2 such that it maximize this profit z, that is 6x1 plus 4x2. ठीक है, तो let's start. कैसे start करते हैं? Step 1. First we convert this inequalities. Inequality means less than equal to or greater than equal to. तो इस केस में अपने पास लेस देन इक्वल टू ही होना चाहिए. एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यूज हैं, दीज मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, दीज मस्ट बी पॉजिटिव. अगर ये नेगेटिव है तो फर्स्ट काम आपका ये रहेगा कि इनको आप पॉजिटिव बना लो बाय मल्टीप्लाइंग विद -1. ओके, तो सब कुछ अगर आपका परफेक्ट फॉर्म में है, दिस इज मैक्सिमाइजेशन, कंस्ट्रेंट्स आर लेस देन इक्वल टू and these are positive, then we can start simplex method. Okay, so step 1, यहाँ से solution start कर रहे हैं. Step 1 is first we convert this inequalities into equation. Equation मतलब इसको हमें equal बनाना है, and this is called standard LPP. So I am writing whole standard LPP including maximize z also. तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2. सब्जेक्ट टू क्या होगा? 2x1 प्लस 3x2. अब ये लेस है, अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें, कुछ ऐसा ऐड करें जिससे कि इक्वल बन जाए, और उसका नाम हमने रख दिया स्लैक वेरिएबल. सो आई एम एडिंग फर्स्ट स्लैक वेरिएबल s1 टू फर्स्ट इनइक्वालिटी, सो मेकिंग इट इक्वल टू 120. सेकेंड 2x1 प्लस x2, इसमें भी हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते हैं और इसको इक्वल बना लेते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. जो भी बचे हुए वेरिएबल्स हैं जो यहाँ नहीं है उनको 0 के साथ लिख लेते हैं, सो दैट पूरी की पूरी इक्वेशन कंप्लीट दिखे. यहाँ भी s1 और s2 स्लैक वेरिएबल्स को हम 0 के साथ में लिख लेते हैं. एंड x1, x2, S1, S2 all are greater than equal to 0. This is called standard LPP. This is step 1. First we convert given general LPP into standard LPP. Okay. Now come to second step. In second step, we assume initial basic feasible solution. तो आपका जो भी basic variable है, what are basic variables? Basic variable are which are making identity matrix. अब यहाँ हमने जो स्लैक वेरिएबल्स s1 और s2 ऐड किए, दे आर मेकिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका कोफिशिएंट 1, इसका 0, 1 0, s1 का 1 0, s2 0 1. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है आपका s1 और s2 से. तो दीज आर बेसिक वेरिएबल्स. तो बेसिक वेरिएबल के अलावा जो भी बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या अज्यूम करते हैं? 0. Initially, we take all non-basic variables as 0. So, let us assume x1 and x2 equal to 0. So, from equation, this equation 1 कह सकते हैं इसको, s1 is 120 and s2 is 60. This is called initial basic feasible solution. Okay. तो step 2 अपना complete हो गया. In step 3, we prepare table. Now I am preparing table for simplex method. So in table we have first 3 columns as B, CB and XB. B for basic variables. Basic variables which are making identity matrix. तो मैंने अभी बताया here S1 and S2. These S1 and S2, these are making identity matrix 1 0 0 1. So these are basic variables. So we will write S1 and S2 in
this column. This is called basis. Column of basic variable is also called basis. Then C for cost, cost of basic variable. Cost is always here in objective function Z. So cost of basic variables S1 and S2. Cost of S1 is 0 and cost of S2 is also 0. So 0, 0. XB is initial basic feasible solution that exists for S1 and S2. Basic variables के लिए कुछ positive value अपने पास आई है, that is 120 and 60. So values of S1 and S2 are 120 and 60. In this way, we fill first three columns and all other columns are coefficients of variables in equations. Line से लिखते चले जाएंगे. Coefficient of x1, x2, s1 and s2. 2, 3, 1, 0. Next equation 2, 1, 0, 1. तो ये आपकी कंप्लीट एंट्रीज हमने कर दी हैं फर्स्ट टेबल में. नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, इन नेक्स्ट इटरेशन इन दोनों में से एक वेरिएबल को हमें हटाना है और इसकी जगह एक वेरिएबल को अंदर लाना है. वन विल बी लिविंग वेरिएबल एंड वन वेरिएबल विल बी एंटरिंग वेरिएबल. अभी डिसाइड कैसे होगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय ZJ माइनस CJ and minimum ratio. So what is ZJ minus CJ? How we calculate ZJ minus CJ? See carefully. ZJ is, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ZJ is CBXJ. XJ जिस भी कॉलम के नीचे आप लिखने जा रहे हैं. For example, if we are talking about Z1, तो Z1 is CBX1. इस कॉलम के लिए CB into X1. 0 into 2, पूरे के पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है 1 by 1, 0 into 2 plus 0 into 2. ये हो गया Z1 और C1. अपने कन्वीनियंस के लिए C1, C2, C3 को ऊपर लिख सकते हैं. तो these are 6, 4, 0, 0. ये हमने यहाँ से मैक्सिमाइज Z से लिख लिए. तो ZJ minus CJ will be 0 minus 6. This will be 0 minus 4, 0 minus 0 and this is 0. तो ये आपकी फर्स्ट टेबल की एंट्रीज होगी. नाउ हाउ वी विल डिसाइड एंटरिंग एंड लीविंग वेरिएबल? लेट्स सी. वी विल सी मोस्ट नेगेटिव ZJ minus CJ. Here most negative ZJ minus CJ is what? Minus 6. As you can see, minus 6 is most negative ZJ minus CJ. तो ये आपका हो गया एंटरिंग वेरिएबल. एंटरिंग वेरिएबल इज दिस x1. x1 इज आवर व्हाट? एंटरिंग वेरिएबल. ओके. एंड अब एक की एंट्री हो रही है तो किसी की एग्जिट भी होगी. तो एग्जिट वेरिएबल भी देखते हैं, मींस लिविंग वेरिएबल के बारे में भी बात करते हैं. तो लिविंग वेरिएबल के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड की कॉलम. दिस कॉलम इज कॉल्ड की कॉलम. तो अगर अपने पास एक भी वैल्यू नेगेटिव मिलती है ZJ माइनस CJ में, तो हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं. मिनिमम रेशियो इज XB अपॉन की कॉलम. हियर की कॉलम इज X1. सो वी कैलकुलेट XB बाय X1. देखते हैं क्या मिलता है. XB 120 डिवाइडेड बाय 3, 40, 60 divided by, 120 divided by 2, that is 120 divided by 2, that is 60, and 60 divided by 2, that is 30. Which one is minimum? Minimum is 30. So this is our what? Key row. We call it key row. Minimum ratio के सामने जो भी है रो, दिस रो इज कॉल्ड की रो. और इसके सामने जो वेरिएबल है S2 इज लीविंग वेरिएबल. लीविंग वेरिएबल इज S2. व्हाट इज लीविंग वेरिएबल? एंड एंटरिंग वेरिएबल इज
की कॉलम से मिला हमें x1 इज एंटरिंग वेरिएबल। सो व्हाट वी डू, x1 आ रहा है और s2 जा रहा है, तो s2 के प्लेस पर x1 को लिख लेते हैं। तो कम टू नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट टेबल कंप्लीट करते हैं। फॉर नेक्स्ट टेबल, कोएफिशिएंट C for cost of basic variable. Basic variables are now S1 and X1. Now basic variables are S1 and X1. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो S1 की कॉस्ट क्या है 0 और X1 की कॉस्ट क्या थी 6। बाकी एंट्रीज जो है हम कुछ रो ऑपरेशन की हेल्प से भरेंगे। रो ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि अपना की एलिमेंट जहां भी की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज आर व्हाट की एलिमेंट। दिस की एलिमेंट मस्ट बी 1 इन नेक्स्ट टेबल। तो 2 को 1 बनाना है और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके होने चाहिए 0, सो दैट कि बेसिक वेरिएबल की जो भी क्वालिटी है उसको कंप्लीट कर पाए। बेसिक वेरिएबल को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ही है, तो इसको 1 होना है और इसको 0। So our aim is to make this key element 1 and all other element of key column as 0. तो इसको 1 बनाने के लिए we divide रो 2, R2 को 2 से डिवाइड कर दें। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 बाई 2 0 एंड 1 बाई 2। तो सेकेंड रो अपनी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो की हेल्प लेके फर्स्ट रो का ये जो 2 है इसको हमें 0 बनाना है। तो अगर हम R1, इफ R1 goes to R1 minus R2, तो ये 0 हो जाएगा। 2 minus 2 is 0. This is a very simple operation. 120 minus 60, 60, 2 minus 2 0, 3 minus 1 2, 1 1 minus 1। तो एंट्रीज फिर से कंप्लीट हो गई। अगेन वी रिपीट द प्रोसेस, मींस वी विल कैलकुलेट Zj minus Cj टू फाइंड आउट द एंटरिंग वेरिएबल Zj minus Cj। Zj minus Cj कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी कॉलम है उसका, जिस कॉलम के नीचे लिखने जा रहे हो उसका CB के साथ मल्टीप्लाई, 0 into 0, 1 into 6। तो 0 plus 6 हो गया 6, 6 minus 6 0। नेक्स्ट 0 into 2 plus 6 into 1 by 2 कितना हो गया 3, 3 minus 4 minus 1, ये क्या आ गया 0, 0 into 0, 0 minus 0, this will be 0, 6 into 1 by 2 3, 3 minus 0 3। Again we have one negative Zj minus Cj। एक भी जब तक मिलेगा तब तक इस प्रोसेस को हमें ऐसे ही रिपीट करते रहना है। If all Zj minus Cj becomes greater than or equal to 0, then we reached our optimal solution। करते हैं आगे फिर से। Again find minimum ratio, and minimum ratio is what, xb by key column। Here key column is, this is our entering variable, एक ही नेगेटिव है तो वही हो गया मोस्ट नेगेटिव। दिस इज की कॉलम से xb डिवाइडेड बाय की कॉलम, 60 बाई 2 दैट इज 30 एंड 30 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 मीन्स 30 इंटू 2 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 दैट इज 60। सो मिनिमम इज 30, so this is our what, key row, this is our key row, ठीक है। एंड 2 इज की एलिमेंट। तो सबसे पहला काम की एलिमेंट को 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। पहले 2 कॉलम्स हम लिख लें, कौन सा वेरिएबल एंट्री कर रहा है और कौन सा वेरिएबल लीव। सो हियर एंटरिंग वेरिएबल इज x2 और x2 आ रहा है s1 की जगह, तो हियर x2 एंड x1। अब इनका हम लिख लें कॉस्ट ऑफ x2 4, मैक्सिमाइज 8 से देखते हो, और कॉस्ट ऑफ x1 इज 6, ये हमने लिख लिया। देन वी हैव टू कंप्लीट ऑल द एंट्रीज
by some row operation so that it becomes 1, key element becomes 1 and all other element of key column as 0. So करते हैं इसको कैसे, इसको 1 बनाना है, मीन्स 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो 60 डिवाइड बाई 2 30, 0 डिवाइड बाई 2 1, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये तो हो गया। नेक्स्ट इसको हमें बनाना है इसको 0, तो इसमें अगर हम 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 1 बाई 4 कितना हो जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 0 होगा, ठीक है। 1 बाई 2 इसको हम अलग से यहां लिख लेते हैं, तो इसका मतलब हमें ऑपरेशन क्या लगाना है, R2 गोज टू R2 माइनस R1 बाई 4, 2 बाई 4 1 बाई 2 होगा और 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 करना है। ये ध्यान रखना है जिस रो को आप लिखने वाले हो, मीन्स की रो के अलावा किसी भी रो में आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करोगे। रो ऑपरेशंस में जो भी मल्टीप्लाई करना है या माइनस का साइन आना है वो सिर्फ और सिर्फ की रो के आगे ही आ सकता है, ठीक है, कीप इट इन माइंड। तो अब क्या करना है, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R1 बाय 4, तो 30 माइनस 60 बाय 4 कितना हो जाएगा, 60 बाय 4 15, 30 माइनस 15 15 हो गया, ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 हो गया, ये माइनस 1 बाई 4 और ये माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, तो कितना हो गया 3 बाई 4 ना, दिस इज 3 बाई 4। तो वापस अपनी एंट्रीज फिल हो गई हैं। अगेन कैलकुलेट जेड माइनस सी जे, जेड माइनस सी जे कैसे कैलकुलेट होता है, जिस भी कॉलम के नीचे जेड माइनस सी जे लिखने जा रहे हैं उसका किससे मल्टीप्लाई करना है, सीबी से, तो करते हैं जेड माइनस सी जे। अब इसके नीचे लिखने जा रहे हैं x1, तो 0 इंटू 4 1 इंटू 6 कितना हो गया टोटल, 0 प्लस 6, 6 माइनस 6 इज 0, 4 इंटू 1 6 इंटू 0, 4 माइनस 4 0, दिस इज 4 बाई 2 मीन्स 2 माइनस 3 बाई 2, 2 माइनस 3 बाई 2 कितना हो गया 1 बाई 2, और ये कितना हो गया 4 बाई 2 माइनस 2 और ये 18 बाई 4, 18 बाई 4 माइनस 2, दिस इज 9 बाई 2, 9 बाई 2 माइनस 2, 9 माइनस 4 5 बाई 2, ये क्या आएगा। So now all the Zj minus Cj are greater than or equal to 0. So now we are at our optimal solution. तो solution कहाँ से और कैसे लिखना है, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 इनकी वैल्यूज यहाँ आपको मिल चुकी है xb के नीचे। इनिशियली हम यहाँ s1 s2 की वैल्यू लेकर चले थे और रिप्लेस करते करते यहाँ x1 x2 आ गया है। जो भी वेरिएबल्स आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन में उन वेरिएबल्स की वैल्यूज आप यहां से चेक करेंगे और जो वेरिएबल यहां नहीं है दैट ऑल आर 0, ठीक है। तो हियर वी आर बोथ द वेरिएबल्स x1 एंड x2, सो x1 इज 15, x2 इज 30 एंड मैक्सिमाइज z, इसको आप कैलकुलेट करोगे, क्या था 6x1 प्लस 4x2, 6x1 प्लस 4x2, तो ये कितना हो गया 90 प्लस 120 210, so maximize z is 210 with x1 15 and x2 30. This is our unique optimal solution. So in this way we can find solution of LPP using simplex method.